You are not able to manifest your desires because, listen carefully, वो desires आपके नहीं होते, किसी और के होते हैं. If you don't know what you want, you will be told what you want and you will believe it. It is happening since your birth. You are told to attend the school. You go to the school, do assignments, get out and numb your brains with the do's and don'ts from your parents. 10th में 90% से ऊपर आ जाए तो साइंस ले लो और IIT क्रैक करने की तैयारी में लग जाओ. फिर किसी कंपनी में अच्छी सी जॉब ले लो और लड़की हो तो 25 की एज में शादी कर लो और अगर लड़के हो तो 30 तक का एक्सटेंशन मिल जाता है. इस दौरान आप ये भूल जाते हैं कि what are your innermost desires that you want to manifest. You are constantly getting told what you should do, what dreams you should see, and this is the biggest reason that you do not get what you desire because वो desire आपके नहीं होते, किसी और के होते हैं. So today I will try my level best to make you aware of your deep-rooted desires that you don't know about yet. By the end of this video, you will be having clear answers to your questions. What do I want to manifest in life? How my dream life is going to be? By the way, I'm Akshita and you can know more about me in the description box of this video. And now I will be telling you the 7-step process that you can follow along while watching this video. So grab a piece of paper and pen and start finding the answer to the question what you want to manifest in your life. So the first is to create an entire desire. The very first step to be clear about your desire is to create a picture of a life that you do not want to live. So for example, when I was in the college, I was doing my mass communication course. So I didn't know that what kind of job I want to get into. इसीलिए मैंने ये सोचा कि मुझे किस तरह की जॉब नहीं करनी. So मैंने पाया ये बहुत सोचने के बाद कि मुझे ऑन लोकेशन न्यूज़ जॉब जो है वो नहीं करनी. मेरे को ये क्लैरिटी आ गई कि मुझे क्या नहीं करना और उसके बाद मेरे लिए ये जानना आसान हो गया कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है. इन द सेम वे अगर हर समय आपको अपनी हेल्थ का कंसर्न रहता है और आपको ये नहीं पता कि आपको अपनी हेल्थ के साथ एक्चुअली करना क्या है, आपके डिज़ायर्स क्या हैं, तो आप क्या चाहते हैं वो आपको नहीं पता, लेकिन आप क्या नहीं चाहते वो जानने की कोशिश करें. तो मेक द एंटायर डिज़ायर प्लान फॉर इट. एंटायर डिज़ायर ये हो सकती है कि आपको पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफस्टाइल की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं झेलने या ज़्यादा वजन होने की वजह से उससे रिलेटेड जो डिजीज़ हो जाती हैं आपको वो मैनिफेस्ट नहीं करनी है अपनी हेल्थ में. आपके क्या फियर हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, जब आपको ये पता लग जाएगा तब आपके लिए ये जानना बहुत ईजी हो जाएगा कि वॉट यू रियली वॉन्ट टू मैनिफेस्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द second point. You live in the two worlds, outer world एंड द इनर वर्ल्ड. एंटायर डिजायर्स क्लियर होने के बाद आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप एक्चुअली में दो वर्ल्ड्स में रहते हैं. जैसा कि मैंने बोला, वन इज द आउटर वर्ल्ड विच इज मेड अप ऑफ वेल्थ, एनी मटीरियलिस्टिक पोजेशन विच मनी इनेबल्स फॉर अस, जैसे कि कार्स, हाउस, ट्रैवलिंग, मोर मनी, एनीथिंग दैट यू बाय इन एक्सचेंज ऑफ मनी. हेल्थ, सो द डिजायर्स रिलेटेड टू इट टू बी हेल्दी, free from diseases, have more muscles or have less fat, be active, basically any thought that you can relate to the health. Relationships, healthy relationships with your parents, siblings, friends, love of your life with husband, education and career. What do you want to study? Do you want to go for international studies? How your dream job will look like? So you see, no matter what your desire is, even the weirdest or the least common desire that comes in your mind emerges out of these aspects of the outer world. Next, we have the inner world, and I think that there are not a lot of people who really think of it right now. Some of the common words that you may have heard related to it are spirituality, connecting to the higher self, your soul's connection to the divine. So I'm not going to go in details about the inner world. However, if you are interested to know more about it, then do let me know in the comments section. Add the desires. अब जब हमने ये जान लिया है कि desires basically wealth, health, relations, education, career के fundamentals पर ही होती हैं, तो अब हमारी डिज़ायर्स हमें क्लियर होती हुई दिख रही हैं. अब बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले हैं हम. वी आर गोइंग टू मेक अ टेबल जस्ट लाइक दिस ऑफ आवर डिज़ायर्स एंड डिवाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरीज दैट आई जस्ट मेंशन. लेट मी एक्सप्लेन इट विद द टेबल एंड यू कैन मेक वन ऑन योर पेपर राइट नाउ. सो वी आर ओनली गोइंग टू राइट द डिज़ायर्स दैट वी वांट टू मैनिफेस्ट इन 12 मंथ्स. सो देखिए, यहाँ पर एक मैंने टेबल बनाया है. इस टेबल में हमने 5 रोज लिए हैं जिसमें हम अपने 5 जो हैं अपने डिज़ायर्स लिखेंगे और साथ में हमारे 4 कॉलम्स है. पहला कॉलम हमारा वेल्थ का है, फिर हमारा एजुकेशन और करियर का एक कॉलम है, उसके बाद रिलेशनशिप्स का कॉलम है और फिर हेल्थ का कॉलम है. और 5 रोज इसीलिए हैं ताकि आप हर रो में एटलीस्ट अपने 5 डिज़ायर्स लिख सकें. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेल्थ की बात करें तो हो सकता है इस ईयर आपका एक डिज़ायर हो कि आपको न्यू कार खरीदनी है, या फिर हो सकता है आपको लग्जरी बैग लेना हो, या आपको कोई ट्रैवल पर जाना हो. इस तरह से आप अपने 5 डिज़ायर्स जो हैं इस वाले पर्टिकुलर
पर्टिकुलर कॉलम में लिख सकते हैं। फिर हमारा होता है सेकंड कॉलम, जो कि है एजुकेशन एंड करियर का। अब इससे रिलेटेड जो भी आपके डिजायर्स हैं, फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको इंटरनेशनल स्टडीज के लिए इस साल जाना हो, या फिर आपको जॉब चेंज करनी हो, या फिर आपको और हायर लेवल की पोजीशन पर जॉब पर जाना हो। इस तरह से एजुकेशन और करियर से रिलेटेड आपके जो भी डिजायर्स हैं जो कि आप नेक्स्ट ईयर तक अकम्प्लिश करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो लिखें। देन कम्स द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ अपना रिलेशनशिप बेटर करना हो, या इस साल आपको अपने लिए एक सोलमेट फाइंड करना हो, शादी करनी हो, लव मैरिज करनी हो, अरेंज मैरिज करनी हो। हेल्थ में आपके फिजिकल बॉडी से रिलेटेड जो भी इस साल के डिजायर्स हैं, जैसे कि अगर हो सकता है आपको लूज करना हो वेट, या आपको मसल गेन करने हो, थोड़ी बॉडी बनानी हो, या फिर आपको गट हेल्थ इश्यूज अपने सही करने हो, या फिर अगर आपको स्किन का एकने का प्रॉब्लम है वो सब सही करना हो, तो अगर ये वाले आपको डिजायर्स मैनिफेस्ट करने हैं तो ये आप अपने लास्ट वाले हेल्थ कॉलम में लिखें। सो हमको 5 डिजायर्स चाहिए ईच कॉलम में, सो दैट कि जब हम ये एक्टिविटी करें उसके बाद हमारे पास टोटल 20 डिजायर्स हो जाएं। इवन इफ इट फील्स इम्पॉसिबल टू मैनिफेस्ट राइट नाउ, जस्ट क्लोज योर लॉजिकल माइंड एंड स्टॉप डाउटिंग बाय एडिंग व्हाट इफ्स बट्स टू योर डिजायर्स। You know, the moment you doubt your desires, you suffocate them from manifesting then and there only. So just open your heart out and write the innermost desires in each column that you want to manifest in the next 12 months. अब जब हमने अपने desires ऐड कर लिए हैं, टोटल 20 desires आ गए हैं, तो अब हम उनमें से कुछ desires अपने subtract करेंगे। अब intensity scale पर हम देखेंगे that where our desires stands. So if any desire falls in the low or moderate category, then it is not worth manifesting. For example, let's take the first desire from wealth column, buying the car. Now I will ask you to close your eyes and pause this video and imagine yourself sitting and driving the car all around. Maybe you are driving with your partner or going for the long drive in the hills alone. Do you feel high vibrations while visualizing this desire? If you become excited and start smiling and your heart starts filling up with joy, तो समझ लेना ये desire 10 on 10 है and it is worth manifesting. Out of the 5 desires from each column, choose the one which has got the maximum points. ऐसा करने से एंड में आपके पास टोटल 4 डिजायर्स बचेंगी, 1 फ्रॉम ईच कॉलम। इस तरह से आप रिमेनिंग डिजायर्स के साथ भी विजुलाइज कर सकते हो। तो आपने देखा, सबसे पहले हमने एंटायर डिजायर प्लान बनाया कि हमें क्या नहीं चाहिए, उस वजह से हमको हमारे टोटल 20 डिजायर्स मिले जो कि हमें एक साल में मैनिफेस्ट करने हैं। अब उनमें से भी हमने इंटेंसिटी स्केल की मदद से अपने डिजायर्स को फिल्टर आउट करके फाइनली हमारे पास अब 4 डिजायर्स आ गए हैं कि अब हमें साल के एंड तक ये 4 डिजायर्स कंप्लीट करने हैं, ये मैनिफेस्ट करने हैं। तो इस तरह से जब आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं तो मेंटल क्लैरिटी आती है और मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत आसान हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रायोरिटाइज द डिजायर्स। वंस वी बिकम क्लियर ऑन आवर डिजायर्स, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रायोरिटाइज द 4 डिजायर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अर्जेंसी। सो फॉर एग्जाम्पल, बाइंग अ कार, चेंजिंग द जॉब, फाइंडिंग द लव ऑफ योर लाइफ एंड लूजिंग वेट। If these are your most desired dreams, then prioritize them as to what you want to manifest first, then second, then third, and then fourth. By doing this, you will be more clear about the most desired dream of yours that you want to manifest. Manifest one desire at a time is the next step. Most of the people make mistake of manifesting all of their desires at once. By doing this, you won't be able to put your total focus on one desire. When focus gets distributed to different desires, then our subconscious mind will not be able to register our desire by whatever technique we are trying to manifest it. So you got 4 desires. You can give 3 months to each desire of yours to get manifested. So theoretically, you will be able to manifest 4 desires in 1 year. Now, how to manifest your desire in a systematic way, I have already made a video for that. The link is right now flashing on your screen. Do check it out if you are serious about your manifestation process. तो देखा आपने कि कितना आसान है ये जानना कि आपकी एक्चुअली में मैनिफेस्टेशन जो करनी है, आपको डिजायर्स वो है क्या। आप अपने आप से ये बात पूछो कि व्हाट डू आई रियली वांट टू मैनिफेस्ट, यार मेरे डिजायर्स क्या हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द पीपल को ये पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली उन्हें मैनिफेस्ट क्या करना है। इसीलिए जब आप इस प्लान को जो मैंने इस वीडियो में बताया है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो एटलीस्ट आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये जानने का कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, आपके खुद के ड्रीम्स क्या हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए इफ यू हैव कम टू दिस एक्सटेंड इन दिस वीडियो, मेक श्योर टू वॉच दिस वन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल Natural Bonds, where I talk about manifestation, health and much more. This is Akshita signing off.